السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينزل بنور الله أو كما قال۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المهين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، عرض و معروض سے قبل دنیا کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، اپنوں کے کام آنے والے، غیروں کے کام آنے والے، اندھیری قبر میں روشنی بن کر آنے والے آقا، حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، ایسے غمگسار بریلی کے امام نے کہا، امتی جو عرض کرے حال زار میں، امتی جو عرض کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، حضور سرکار مدینہ، راحت قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ، جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ۔ ایسا خوشبودار کہ بریلی کے امام کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ آئیے اسی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و متبرک بارگاہ میں درود و سلام اس عقیدے اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام، یعنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آپ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ کے دل میں بزرگوں کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور خاص کر بزرگان غفور شریف کی محبت آپ کے دل میں جلوہ گر ہے۔ اور بالخصوص بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے جن کے ہاتھوں میں حضور اکبر المشائخ رضی اللہ عنہ کا پاکیزہ دامن بھی ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور اکبر المشائخ رضی اللہ عنہ کے نورانی دامن کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوگا۔ آئیے انہی کے
کے حوالے سے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی تحریر تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مصرے سننے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اکبر میاں کی محبت دل میں بسا کے دیکھ، اکبر میاں کی محبت دل میں بسا کے دیکھ، سبحان اللہ، حریم ناز پہ ان کی حریم ناز پہ پلکیں بچھا کے دیکھ، اکبر میاں کی محبت دل میں بسا کے دیکھ، ان کی حریم ناز پہ پلکیں بچھا کے دیکھ، اور دیکھ اگر دیکھنی ہے عظمت محبوب کبریا، اگر دیکھنی ہے عظمت محبوب کبریا، چل ذرا مخدوم شریف کا سرما لگا سرما لگا کے دیکھ، چل ذرا محمود کا سرما لگا کے دیکھ۔ اور شاعر آستانہ استاد الشورا حضور منظر میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں ولی کے ہاتھ میں عروج و زوال رہتا ہے، ولی کے ہاتھ میں عروج و زوال رہتا ہے، نہ ان کو خوف نہ حزن و ملال رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حزن و ملال رہتا ہے۔ ہم ان کو سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں، ہم ان کو سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں، اور انہیں ہمارا ہمیشہ خیال سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیال رہتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بانٹ دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بانٹ دیتے ہیں، نہ ان کے پاس خزانہ نہ مال رہتا ہے، نہ ان کے پاس خزانہ نہ مال رہتا ہے۔ کسی خزانے کی حاجت نہیں منظر کو، کسی خزانے کی حاجت نہیں منظر کو، غریب کی طرف سے پیر کے وہ اپنے مالا مال رہتا ہے، طرف سے پیر کے وہ اپنے مالا مال رہتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، سلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے تقریباً 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز کیا۔ یکے بعد دیگرے ہر نبی و رسول آتے رہے، رب کا پیغام قوم پر پہنچاتے رہے، رب کی دعوت، اسلام کی دعوت اپنی قوم کو دیتے رہے۔ کبھی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم صفی اللہ آتے ہیں، کبھی اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے نوح نجی اللہ آتے ہیں، کبھی اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی اس قوم اور بندوں کی ہدایت کے واسطے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، کبھی عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں۔ یعنی ہر زمانے میں پروردگار عالم کسی نہ کسی نبی کو بھیج رہا ہے، کسی نہ کسی رسول کو بھیج رہا ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں آ کر کے اپنی قوم کو خدا کا پیغام دے رہا ہے، خدا کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا رہا ہے، رب کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، رب کی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے۔ حضرت آدم آئے ہیں، اپنی قوم کو خدا کا پیغام دیا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے ہیں، اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے ہیں، قوم کو رب کی بارگاہ کی طرف بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کی کرے، تمام انبیاء و مرسلین آتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو رب کا پیغام دیا، اسلام کی طرف بلایا، خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا، رب کے ایک ہونے کی طرف بلایا، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے نبی کو اذیتیں پہنچائی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، اپنے نبی کو برا بلا کہا، ان کو گالیاں بکی، ان کی شان میں گستاخیاں کی، بےہودہ کلمات ان کی شان میں بکے۔ یعنی ہر نبی اور ہر رسول کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود بھی ہر نبی اور رسول اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے، رب کا پیغام قوم تک پہنچاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، آپ کو آتش نمرود میں ڈالا جاتا ہے، نارے نمرود میں ڈالا جاتا ہے، آپ ڈٹ کر کے نمرود کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، آپ کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے،
को अंजाम देते रहे। लेकिन अब बारी आती है आमिना के लाल की, अब बारी आती है मदीने वाले आका की, अब बारी आती है हम गुनहगारों के शफाअत फरमाने वाले आका की, अब बारी आती है अल्लाह के महबूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, मेरे आका की विलादत होती है और किस शान से मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, किस शान से मेरे आका की विलादत होती है। आइए किसी आशिक से जुमले उधार ले लेते हैं। किसी आशिक ने कहा था सुबह तैबा में हुई बजता है बाला नूर का, सुबह तैबा में हुई बजता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है काला नूर का, सदका लेने नूर का आया है काला नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना तेरा तेजाल सदका नूर का। और नारियों को तोड़ था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का तोड़ था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है मेरे नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर हाफ़िज़ बुखारी, फैज़ाने हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज, फैज़ाने रफ़ीक़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान से मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। क्या मंजर है मेरे आका की विलादत का। अरेबी के ताजदार ने कहा था जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअद में लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअद में लाखों सलाम। और किसी शायर ने कहा था देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। पाँव पाँव चलते मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में, अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में। और एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। ये अच्छे अच्छे कौन है? हज़रत आमिना फरमाती है जब मेरा नूरे नजर, जब मेरा लफ्ज़े जिगर, जब मेरा शहजादा मेरे बदन पाक में तशरीफ लाया, मेरे बदन अक़दस को जब नजर हुआ तो आपकी वालिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि कभी मुझे मुबारकबाद देने के लिए हजरत आदम आ रहे हैं, कभी हजरत मूसा आ रहे हैं, कभी हजरत ईसा आ रहे हैं, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं और आकर के मुझे मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तू अल्लाह के महबूब की मां बनने वाली है। आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। इस शान से मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जब मेरे आका की विलादत हुई, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, रब ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब इरशाद फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारे कोई बाप नहीं है, तुम्हारे वालिद नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल है व खातमुन नबिय्यीन, और हमने इसे नबियों का खातिम बना करके भेजा है, सारे नबियों में सबसे आखिर में भेजा है। और मेरे आका इस दुनिया में आखिरुल अंबिया बनकर के तशरीफ लाए हैं, खातमुन नबिय्यीन बनकर के तशरीफ लाए हैं। मेरे आका के आने पर रब ने नबूवत के दरवाजे को बंद फरमा दिया, रिसालत के दरवाजे को बंद फरमा दिया। जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया, अब मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब मेरे आका के बाद कोई रसूल नहीं आएगा। जब शैतान ने देखा तो खुशियां मनाने लगा, जश्न मनाने लगा, खुश होने लगा। अब मैं कौम को बहकाऊंगा, इसलिए कि अब कौम को हिदायत देने के लिए कोई नबी नहीं आएगा, अब कौम की हिदायत के लिए कोई रसूल नहीं आएगा। जब शैतान खुशी मनाने लगा तो रब की रहमत ने पुकार करके कहा ऐ शैतान खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिस कौम की हिदायत के लिए हमने कभी आदम को भेजा, कभी मूसा को भेजा, कभी इब्राहिम को भेजा, कभी इस्माइल को भेजा, कभी ईसा को भेजा, अब इसी कौम की हिदायत के लिए, अब इसी कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए, अब इसी कौम को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाने के लिए हिंदुस्तान की
सरजमीन पर कभी हम गरीब नवाज को बेचेंगे, कभी हम को बेचेंगे, कभी हम वारिस पाक को बेचेंगे। दहलीज की सरजमीन पर जब कौम कुफ्र की तारीकी में जा रही होगी, जब कौम हिदायत के रास्ते से भटक रही होगी, तो दहलीज की सरजमीन पर हम खुदीन हम प्यारे गाती को सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। और फरमून शरीफ की सरजमीन पर जब शहीदियत उरूज पर होगी, जब शहीदियत उरूज पर होगी और शिया लोग अपना कब्जा जमा रहे होंगे, तो तमाम शियों के छक्के चुराने के लिए फरमून की सरजमीन पर हम हाफिज़े बुखारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत उलमाए हम अहले सुन्नत उर्फ़े रफ़ीकी फैज़ान रफ़ीकी नारे तकबीर। तो पता क्या चला कि अब नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, लेकिन हमें हिदायत देने के लिए परवरदिगार आलम ने विलायत के दरवाजे को खोल दिया है। अब परवरदिगार आलम ने ये सिस्टम और ये निजाम बनाया है। अब कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह के वली तशरीफ ला रहे हैं। बगदाद की सरजमीन पर गौसे आज़म आ रहे हैं, अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर गरीब नवाज आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी निगाह विलायत से, निगाह करामत से 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके जन्नत का परवाना उनके हाथों में थमा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब नवाज के मानने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले, गरीब नवाज का हाथ दामन अपने हाथों में थमाने वाले, अगर हमने गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस दुनिया में रह करके सच्ची अकीदत और मोहब्बत कर ली, उनका दामन मजबूती से साथ थाम लिया और उनके बताए हुए रास्ते पर हम अपनी जिंदगी को गुजार करके चले गए, तो कसम खुदा की जिस तरह वे इस दुनिया में हमारी मदद फरमाया करते हैं, कल क़यामत के मैदान में भी गरीब नवाज हमारी मदद फरमाएंगे, हमारी शफाअत फरमाएंगे। इसलिए रब का कुरान कहता है अल्लाहु यौमैन बादुल बादिन अदुकुन इल्लल मुत्तकीन, कि जब सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जाएंगे, कोई किसी के काम न आएगा, तो जो अल्लाह वाले होंगे, जो अल्लाह के औलिया होंगे, जो अल्लाह के दोस्त होंगे, वो अपने चाहने वालों को उनका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह वालों की सोहबत का फायदा और अल्लाह वालों का मकाम मर्तबा है कि नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों के निजाम को बनाया है कि ये वली जो है, जो अल्लाह के औलिया हैं, इनके पीछे पीछे चलो, इनके नक्शे कदम पर चलो, इनकी बारगाह से वाबस्ता हो जाओ, जो इनकी बारगाह से वाबस्ता हो जाता है परवरदिगार आलम उसकी ईमान की हिफाजत फरमाया करता है। इसलिए कि रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो, तक़वे वाली जिंदगी गुजारो, अपने अंदर परहेजगारी इख्तियार करो। पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ये भी रब का सरकार के सदक़े में हम पर करम है कि बहुत सी उम्मतों का तज़किरा कुरान के अंदर आपको मिलेगा। हज़रत आदम की उम्मत का तज़किरा भी कुरान में है, मूसा और ईसा की उम्मत का तज़किरा भी कुरान में है, इब्राहिम और इस्माइल की उम्मत का भी तज़किरा कुरान में है, लेकिन परवरदिगार आलम ने किसी भी नबी की उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब नहीं किया है। अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब किसी को अता किया जा रहा है, तो अपने हबीब की उम्मत को अता किया जा रहा है। ये हमारे नबी का करम है, नबी के वसीले से, नबी के सदक़े से परवरदिगार आलम हमारे मर्तबे को भी बढ़ा रहा है, हमारी इज्जत भी बढ़ा रहा है। अपने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख करके बताएं, मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी वही तो है जो 5 वक्त की नमाज वो जमात अदा करता है, जो कदम कदम पर शरीयत मुस्तफा का ख्याल रखता है, वही मुत्तकी है। जो खाना खाता है तो शरीयत के मुताबिक खाता है, पानी पी रहा है तो बैठ करके 3 सांस में सर ढांक करके देख करके नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पी रहा है, यानी उसका एक कदम अगर उठ रहा है तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक उठ रहा है, वही तो मुत्तकी है। लेकिन फरमा रहा है ईमान लाने के बाद, तक़वा इख्तियार करने के बाद अभी तुम्हारे ईमान की
हिफाजत की गारंटी नहीं है, अभी कोई सनद नहीं है कि तुम ईमान बचा करके ले जाओ। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान भी लेकर के आए हैं, तकवे वाली जिंदगी में प्यार की है, लेकिन उनके ईमान की हिफाजत की कोई जमानत नहीं है। आइए बड़े मुख्तसर अंदाज में इशारतन में आपको बताता चलूं, हज़रत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह है? हम क्या जाने इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आप मदरसे के अंदर कदम रखिए तो आपको पता चलेगा कि तफसीर के अंदर जिसका मकाम बड़े ऊंचे मकबूल नंबर पर आता है, जिसके इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहा जाता है, जिसकी तफसीर राज़ी बड़ी मशहूर है। आप बड़े वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, लेकिन आपकी नज़ा का वक्त आता है, आपके इंतकाल का वक्त आता है, शैतान आता है और शैतान आने के बाद कहता है, ए राज़ी तुमने दुनिया में बड़े मुनाज़रे किए हैं, बड़े लोगों को हराया है और रब की वहदानियत का ऐलान किया है, रब के मुकद्दर दलाइल पेश किए हैं, रब के एक होने पर तुमने लोगों को दलीलें पेश की हैं। अगर तुम्हारा रब एक है तो अपने रब को एक मानते हो, तो शैतान आकर के कहता है मुझे जरा दलील देकर के बताओ ना कि रब एक ही है और उसके अलावा कोई नहीं है। सैयदना इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह शैतान के सामने दलील पेश करते हैं, शैतान आपकी दलील को रद्द कर देता है, आपकी दलील की तरदीद फरमा देता है, आप दूसरी दलील देते हैं, शैतान फिर रद्द कर देता है, तीसरी दलील देते हैं, फिर शैतान रद्द कर देता है। तकरीबन 300 से ज्यादा इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने उस शैतान को रब के एक होने पर दलीलें दी है, लेकिन शैतान सारी दलीलों को अब रद्द करता चला जा रहा है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह परेशान है, आखिर कैसे शैतान को चुप किया जाए, आखिर क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अपने पीर मुर्शिद को पुकारते हैं, अपने पीर की तरफ अपनी तवज्जो को लगाते हैं, अपने लोगों को अपने पीर की तरफ लगाते हैं, पीर की बारगाह से जवाब आता है, ऐ फखरुद्दीन राज़ी इस शैतान को क्यों दलीलें देते हो? अगर तुम्हें इस शैतान को चुप क्यों करना है, खामोश ही करना है, तो क्यों नहीं कर देते हो? मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के एक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, उर्से रफ़ीकी, फैज़ाने रफ़ीकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर किसे कहा जाता है, जो कुरान की तफसीर किया करता है, जो कुरान की आयतों के मतलब बयान किया करता है। ये आयत कब उतरी है, क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, ये मुफस्सिर बयान कर रहा है। लेकिन जब नज़ा का वक्त आया है और शैतान जब चुप नहीं हो रहा है, तब इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ईमान की हिफाजत अगर कोई करता हुआ नजर आ रहा है तो अल्लाह का वली करता हुआ नजर आ रहा है, आपके पीर मुर्शिद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ईमान लाओ, तक़वा भी इख्तियार करो। जब ईमान ले आओ, तक़वा इख्तियार कर लो, तब इस ईमान को बचाने के लिए, इस तक़वे को बचाने के लिए किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर लगाओ, किसी अल्लाह वाले के दामन को थाम लो। तो तुम जो ईमान लेकर के आए हो, तो तुमने अपने तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार की है, अब ये अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता होकर तुम्हारे ईमान और तक़वे की ज़मानत और दलील बन गई है। ये अल्लाह वालों की निस्बत का फायदा हुआ करता है कि हम जो पूरी जिंदगी ईमान के साथ गुजार रहे हैं, नमाज और रोजे की पाबंदी के साथ गुजार रहे हैं, लेकिन पता नहीं ईमान पर खात्मा हो या ना हो। लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले का दामन हमारे हाथों में होगा, किसी बारगाह से हम वाबस्ता होंगे, तो इस नज़ा के वक्त में हमारे पीर मुर्शिद हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे, अल्लाह वाले हमारी ईमान की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। इसलिए प्यारो, हमें जरूरत है इस बात की कि हम किसी अल्लाह वाले के दामन को थामने, किसी बुजुर्ग के आस्थाने से वाबस्ता हो जाए। और कसम खुदा की, आस्थाने तो सभी जगह पर है, सारे आस्थानों की अजमतें हमें तस्लीम है, सारे आस्थानों की अजमतें हमारे सर और आंखों पर है, लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों, हमारे इर्द गिर्द में एक ऐसा भी तो आस्थाना है जो बेमिसाल बेमिसाल है, जो बेनजीर है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसको आस्थाना फखरू शरीफ कहा जाता है, आस्थाना डेरा शरीफ कहा जाता है। यहाँ पर अल्लाह के ऐसे मकबूल बंदे रहा करते हैं कि अगर अपना लुआ में रहने
गांठा हुआ होता है तो उसको भी शिफा मिल जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको भी शिफा मिल जाया करती है। ऐसे अजमत वाले औलिया किराम से हमारा ताल्लुक है। और हमने फरमाया ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये अल्लाह वाले होते कौन हैं, ये अल्लाह के वली होते कौन हैं? अल्लाह के वली कोई और नहीं होते हैं। आज हम ये समझते हैं कि किसी के तावीज़ से हमारी दुकान तेज चलने लगी, ये बहुत बड़ा वली है। किसी की दुआ से हमें शिफा मिल गई, ये बहुत बड़ा वली है। किसी ने हमारे ऊपर कुछ पढ़कर खत्म कर दिया, हमें शिफा मिल गई, ये वक्त का वाला वली है। लेकिन वली उसको नहीं कहा जाता है जो हवा में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़े, वली उसको नहीं कहा जाता है जो पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़े। एक मर्तबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हवा में मुसल्ला बिछाते हैं, उस पर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत सैयदा राबिया बसरिया ने देखा कि हसन बसरी हवा में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहे हैं। आपने पानी पर मुसल्ला बिछा दिया, उन्होंने देखा कि इन्होंने वो पानी पर मुसल्ला बिछा दिया है। फिर हजरत राबिया बसरिया ने इरशाद फरमाया, ए हसन बसरी, विलायत हवा पर और पानी पर मुसल्ला बिछाने का नाम नहीं है। इसलिए कि हवा पर तो हवा में तो मक्खी मच्छर पैदा करते हैं, पानी पर तो मछलियां भी पैदा करती हैं। विलायत अगर ना है तो कदम कदम पर शरीयत रसूलुल्लाह का रिवाज है, कदम कदम पर रसूलुल्लाह की शरीयत की पाबंदी करने का नाम विलायत है। और शरीफ की बुजुर्गों की बारगाह में चलते हैं, आस्ताना आलिया कबूल शरीफ के बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते हैं और देखते हैं कि रब का जो कुरान कह रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो ईमान वाले भी होते हैं, तक़वे वाले भी हुआ करते हैं। आइए ना हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक वाक़या मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाऊं। कानपुर की सरजमीन है, हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत अलीम है। आप कानपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हुजूर मुफ्ती साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुर्सिया हजरत की बारगाह में हाजिर हैं। हजरत ने पूछा कि तबीयत अलीम है, डॉक्टरों ने खून चढ़वाने का मशवरा दिया है, डॉक्टरों ने कहा है कि खून चढ़वाया जाए। मुफ्ती साहब किबला ने हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर जामिया अशरफ किया मुबारकपुर के सेमिनार में ये फैसला तय हो चुका है कि वक्त जरूरत किसी शरई उसूल की बुनियाद पर, शरई हाजत की बुनियाद पर खून चढ़वाया जा सकता है, ये जायज है। हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हाँ ये जायज तो जरूर है, ये उनका फतवा है, लेकिन मैं खून नहीं चढ़ाऊंगा, ये मेरा तकवा है। सुभान अल्लाह, नहीं चढ़ाऊंगा, ये मेरा तकवा है। हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे आलम में भी खून को नहीं चढ़वाया है, फतवे को छोड़ करके तकवे पर अमल किया, रुखसत को छोड़ करके अज़मत पर अमल किया है। पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नते रसूल के मुताबिक गुजरा है, रात गुजरी है सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक गुजरी है, दिन का उजाला है रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक शख्स बारगाह में हाजिर हुआ जिसके ऊपर लाल कपड़ा पहना हुआ है। हुजूर ने हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जरा इधर आओ, कि वो जो लाल कपड़ा पहने हुए हो ये मर्दों के लिए जायज नहीं है, ये नाजायज है, इसको उठा करके बदल लिया जाए, चेंज कर लिया जाए और आज के बाद दोबारा लाल कपड़ा न पहना जाए। यानी ये अल्लाह के ऐसे वली हैं जो खुद भी सुन्नतों पर अमल करते हैं और जो उनकी बारगाह से वाबस्ता होते हैं, जो उनकी बारगाह में हाजिर हुआ करते हैं, उनको भी सुन्नत पर अमल करने की तामील किया करते हैं, उनको भी सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म दिया करते हैं। एक शख्स एक मुरीद हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक छड़ी लेकर के हाजिर हुआ। उस छड़ी के सिरहाने पर उसकी मुठिया पर कुछ चांदी का पीतल का काम है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला से हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहब्बत के अंदाज में पूछा, क्या फरमाते हैं मुफ्तियान इकराम इस छड़ी के बारे में जिस पर पीतल लगा हुआ है? हुजूर मुफ्ती साहब किबला अदब के साथ अर्ज करते हैं कि हुजूर ये तो जायज ही होना चाहिए, ये जायज होना चाहिए। और हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा नहीं कि वो आलिम दीन नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के सिर्फ आलिम दीन नहीं बल्कि बड़े मुफ्ती थे। हुजूर अकबरुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वली उस जिसके पास इल्म की दौलत हुआ करती है। इंसान उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक कि वो इल्म दीन हासिल न करे। हुजूर गौसे आज़म, कौन गौसे आज़म?
جو تمام ولیوں کی سردار ہے، جن کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، مجھ سے پوچھا گیا آپ کو قطبیت کا درجہ کیسے ملا؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت الخطبہ، فرماتے ہیں میرا اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں میں قطب بنا ہوں، علم دین حاصل کرنے کی بنیاد پر بنا ہوں، اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے تو علم کی برکتوں کے صدقے میں بنایا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں کالا کپڑا پہن لیا، ولایت کے مقام پر پہنچ گئے، لال پیلا کپڑا پہن لیا، کٹیاں آنکھوں میں پہن لی، ہم نے سمجھ لیا ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ لیکن پیارے یہ کوئی ولایت نہیں ہے، ولایت کوئی گلیوں گلیوں میں پھرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ولایت تو تہجد کے وقت کے بعد جب انسان اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور سردی کے عالم میں ٹھنڈے پانی سے، جیسے کبھی مفتی افضل صاحب فرما رہے تھے وضو بنایا، حضور مفتی صاحب نے بنا رہے سخت سردی کے عالم میں، اگرچہ فجر کے وقت میں تھوڑا ہی وقت تھا، لیکن جب انسان عظیم رخصت کو چھوڑ کر کے عظیم پر عمل کرتا ہے اور اللہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارا کرتا ہے، تب پروردگار عالم ولایت کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ حضور اکبر المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی صاحب قبلہ سے جب محبت کے انداز میں پوچھا، ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، معلوم سب تھا، لیکن چونکہ مرید خاص تھے حضور مفتی صاحب قبلہ، اس لیے محبت سے پوچھا۔ مفتی صاحب قبلہ نے عرض کیا حضور یہ تو جائز ہی ہونا چاہیے، لیکن حضور اکبر المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھڑی کو الگ کر دیا اور اس کو استعمال نہیں فرمایا، فرمایا یہ تو فتویٰ ہے لیکن اس کو استعمال نہ کرنا یہ تقویٰ ہے۔ تو جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنی راتوں دن کو رب کی عبادت میں گزارا کرتے ہیں، اور اسی کو رب نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اپنی راتوں کو سجدوں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں وہی میرے محبوب و مقبول بندے ہیں۔ اس لیے پیارو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کی بارگاہوں سے وابستہ رہیں اور ان کی محبتوں کا چراغ اپنے سینے میں جلائے رکھیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی محبتوں کا چراغ اپنے سینوں میں جلا لیا تو یقیناً یہی چراغ کی روشنی قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی، حشر میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت عرس رفیقی حضور مفتی صاحب قبلہ، حضور مفتی صاحب قبلہ رفیقی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔